Hi everyone, I'm back with another reaction video of a very interesting song जो मेरा बहुत टाइम से एक्चुअली करने का मन था, लेकिन इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं फार्मर्स के ऊपर कि पता नहीं ये सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन छूटते जा रहा था। एंड इस गाने का नाम है किसान एंथम, जिस पे मैं कब से सोच रही हूँ मुझे रिएक्शन करना है, जो कि है मनकीरत औलख, निशवानी और जस्ट जॉर्डन। वन सेकेंड, आई सी द क्रेडिट्स इन डिटेल। यस, तो सिंगर्स हैं मनकीरत औलख, निशवान भुल्लर, जस बाजवा, जॉर्डन संधू एंड फाजिल पुरिया। सो मैनी सिंगर्स इन दिस एंथम, एंड होने भी चाहिए, नाम ही ऐसा है किसान एंथम। इट्स अ ग्रैंड सॉन्ग। म्यूजिक इज़ बाय फ्लेम, लिरिक्स इज़ बाय श्री ब्रार, एंड उन्हीं के चैनल पे है ये। वीडियो डिज़ाइन इज़ बाय बी टू टुगेदर, वीडियो इज़ बाय रंजन बीर, मिक्स एंड मास्टर इज़ बाय एरन, produced by Fateh Karan and Shri Brar, or edited by Tape Head. DOV is DAVV Cine. So, without wasting any time, let us start this song. Yeah. पुलिस की पहली बार एक ट्रैक तोड़ दी किसानों ने। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80ਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ। Awesome. ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਏ, Wow. क्या आवाज़ है? ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਏ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਏ। ਢੋਲ ਮਾਲ ਖੱਪ ਪਏ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਅੜੇ ਬੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਮੂਰੇ ਲਾਈਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ, ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਮਾਮੇ ਮਾਸੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ, ਜਾਗੋ ਆਈਆ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰੇ ਲਾਈਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਨੀ, ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। बड़ा भाई है बंदा, बता दियो खतर ने। और ताया न धरना पर भाइया न फाजिलपुर या की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो ले आओ, चाहे हम नहीं मानांगे हक है किसान का खैरात नहीं। ले लेंगे हक ते मजाक नहीं, बटे हुआ न खारगे राखी से दिल्ली कर दो हिसाब, बाकी बात नहीं। ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੁਕਸੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਖਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਟੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੰਗਣ, 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਂਗ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਲੀਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ ਓ ਯੂਪੀ ਐਮਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਨਿੱਕਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚੂਲਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਐ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਸੇਜ ਬਣੇ ਕੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਤ ਲਾਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਆਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲਿਆ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲਿਆ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲਿਆ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲਿਆ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਖੜਦੇ ਸਕੀਮ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਬੈਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ वन सेकेंड यार ये आई वॉन्टेड टू रीड लास्ट में एक्चुअली पंजाबी में कुछ आया है लिखा हुआ एंड आई कैन रीड गुरमुखी मुझे पढ़ना था लेकिन उसके ऊपर ये क्यों आ गया है यार ये लास्ट उसमें स्क्रीन में फ्रेम वन सेकेंड असी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ हक लेंदे। उसके बाद का पोर्शन मुझे दिख नहीं रहा है इमेज के पीछे, बट आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट। असी नाल नाल धन्नवादी हाँ पंजाबी इंडस्ट्री दे जो साडे इस गीत नू
एंथम तक ले गए. ओके. यस, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन दिस सॉन्ग. तो ये एक थैंक यू नोट है, धन्यवाद करने के लिए नोट है इन द एंड ऑफ द सॉन्ग. बहुत ही अमेजिंग गाना है. आई रिग्रेट कि मैंने इतना लेट किया ये रिएक्शन एंड मैंने इतना लेट सुना ये गाना, क्योंकि मैं हमेशा गाना रिएक्शन करने से पहले सुनती नहीं हूँ. तो मेरे दिमाग में कब से था मुझे किसान एंथम पे रिएक्ट करना है, बट आई वॉज नॉट एबल टू एंड आई रिग्रेट दैट सीरियसली. बहुत ही अमेजिंग गाना है ये. एंड सीरियसली इस गाने को एक्चुअली टाइटल मिलना ही चाहिए. ये सही मायने में किसान एंथम है. दे हैव टच पॉइंट, हर एक पॉइंट को इन्होंने इस गाने में बताया है एंड बहुत ही खूबसूरती से बताया है. एंड इट्स अमेजिंग. इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस गाने में, इतने सारे सिंगर्स इन्वॉल्व हैं, तो एंथम का टाइटल तो इसे मिलना ही चाहिए. बाकी बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने किए हैं फार्मर्स के, जिसमें भी उन गानों में भी हर एक पॉइंट को बहुत ही ब्यूटीफुली लिरिक्स में ढाला गया है. लेकिन इस गाने में जो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो दैट्स वाई आई थिंक इसे किसान एंथम कहा है. तो बहुत ही अमेजिंग गाना है. इसमें हर एक चीज़ मीडिया के जो बारे में बोला है कि बहुत सारे क्या, इनफैक्ट हर एक मीडिया चैनल बिका हुआ है, लेकिन फिर भी देखो हम बीबीसी पे छाए हुए हैं. हर एक बात उन्होंने कही है इस गाने में. 1 सेकेंड, मैं एक बार एंथम के लिरिक्स ओपन कर ही लेती हूँ. बीबीसी ਦੇ ਉੱਤੇ छाए हुए ने एंड स्वराज के पीछे बैरिकेड हटा के इतनी मुश्किल से वो लोग पहुँचे थे तब इतना पहले ये गाना रिलीज़ तब हुआ था. एंड और इसमें भी इन्होंने इस बारे में भी बात की थी कि तुम लोग तो बदनाम करते थे पंजाब के लोगों को, यंगस्टर्स को, कि ड्रग्स एंड ऑल के पीछे पड़े रहते हैं, तो अब देखो. एंड हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में कहा है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें गाने में थी, जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, कि इन्होंने ये भी कहा है इस गाने में क्लियरली कि हमने पहले तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हथियारों के साथ, जो पंजाब के राजा एंड ऑल महाराजा हुए हैं, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने हथियारों के साथ. लेकिन अब ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोटेस्ट वाली किसान फार्म बिल का जो प्रोटेस्ट है, ये जंग तो हम बिना हथियारों के शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट के थ्रू जीत के जाएंगे. तो ये बात इन्होंने गाने में साफ क्लियर की है. एंड अननेसेसरली कुछ ना कुछ मीडिया चैनल्स बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सबको सामने सामने दिख रहा है कि इतने महीनों से प्रोटेस्ट हो रहा है एंड बहुत ही पीसफुली हो रहा है. वहाँ पे कीर्तन होते हैं, गीत गाए जाते हैं एंड बुक्स का लंगर लगता है. अपार्ट फ्रॉम लंगर के लिए तो हम फेमस हैं ही, लेकिन अब वहाँ पे प्रोटेस्ट की जगह पे बुक्स का भी लंगर लगा है, बुक्स बांटी जा रही हैं, तो जिससे कि लोग इतिहास को जाने. एंड तो इतना अच्छे से प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आई एम वेरी श्योर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस हद तक ये प्रोटेस्ट जाएगा. एंड हैट्स ऑफ टू पीपल जो इस प्रोटेस्ट में वहाँ दिल्ली पहुँचे हैं. और रियली मुझे मतलब आई ऑल्सो फील ये सारे सॉन्ग्स को देख के कि इट्स वेरी रॉन्ग कि मैं वहाँ नहीं गई हूँ, दिल्ली नहीं जा पाई हूँ वहाँ पे. मतलब ये देख के लगता है यार जाना चाहिए ज़रूर, बिकॉज इट्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. इस तरीके के अगर कुछ ऐसा लॉ लाया जा रहा है जो नहीं ठीक है किसानों के लिए, तो उनका हक बनता है ना डेमोक्रेटिक कंट्री की वो प्रोटेस्ट करें और अपनी बात को सामने रखें, पीसफुली रखें. तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं एंड इन देयर प्रोटेस्ट तोड़ फोड़ भी करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं एंड ऑल. बट किसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है. पीसफुली प्रोटेस्ट की सब प्लानिंग हो रही है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कितनी कोशिशें की बदनाम करने की. इट्स बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप आतंकवादी बोल देते हो किसी को भी. इस गाने में ये लाइन भी बात करते करते मुझे याद आ रहा है इस गाने में क्या क्या टच पॉइंट्स थे. ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से कही है कि अगर हम आतंकवादी होते ना तो तुम हमें संभाल नहीं पाते, हमें साम पा रहे हो तुम, तो वो इसलिए क्योंकि हम किसान हैं.
तो एंड हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आतंकवादी होते तो संभालना मुश्किल था तुम्हारा। तो ये बात भी इन्होंने इसमें कही है। ये सिर्फ प्रोपागेंडाज होते हैं गवर्नमेंट के, ऑपोजिशन के, उन पावर हंग्री लोगों के, जो इन सारी सिचुएशंस में अपना दरवाज़ा ढूंढते हैं, अपनी एक खिड़की ढूंढते हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में आ पाएँ एंड वो कुछ ना कुछ तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों ने करने की कोशिश की जिसके बाद किसान बहुत स्ट्रिक्ट हो गए अपने प्रोटेस्ट को लेके, एंड वो किसी भी पॉलिटिशियन या किसी को भी आके बात करने के लिए स्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्लियरली कहा था आप आके बैठ सकते हो बट यू कांट से एनीथिंग, आप यहाँ पे आके भाषणबाजी नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ की थी। अभी 26 जनवरी को जो ये लोग प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी आई हर्ड ऑन न्यूज़ दैट देर वर सम पीपल जिनको किसानों ने पकड़ा जो कि न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका प्लान कुछ ऐसा था कि 26 जनवरी को दे विल डू सम फायर और समथिंग, एंड जिससे कि किसानों के ऊपर इल्ज़ाम आए कि वो पुलिस वालों पे या किसी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए पेड लोगों को, आई डू नॉट नो ऑपोजिशन है, करंट गवर्नमेंट है, कौन है, दैट आई कांट से, बट ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं एंड किसान उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर रही है। एक बार पहले भी मैंने किसी न्यूज़ में, अकाल टीवी में जो न्यूज़ आती है उसमें मैंने देखा था कि देयर वाज अ पर्सन जिसने पुलिस की वर्दी पहनी थी एंड उसके ऊपर उसने जैकेट पहनी हुई थी, एंड वो खालिस्तान के कुछ 4 से 5 लोग नारे लगा रहे थे, एंड जब उन 4-5 लोगों में से एक को पकड़ा तो उसकी जैकेट के नीचे उसका आई कार्ड, उसका पुलिस की वर्दी एंड ऑल एवरीथिंग वाज देयर। तो उसको भी किसानों ने पकड़ा एंड पुलिस के हवाले किया कि दीज आर द पीपल जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं इन देयर प्रोटेस्ट। तो ये बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं बदनाम करने की, लेकिन किसान हर एक परेशानी का मुकाबला हौसले से और शांतिपूर्वक कर रहा है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि किसी को प्रूफ की ज़रूरत होनी चाहिए। अपने लोगों के ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर एक विश्वास नाम की चीज़ होती है, वो होनी चाहिए। एम्पैथी नाम की चीज़ होती है, आपको एम्पैथाइज करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सच है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो आई रियली डोंट सी एनी पॉलिटिक्स इन दिस। लोग पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश करते हैं ऐसे मुद्दों में, ऐसे बड़े, जब एक प्रोटेस्ट कोई बहुत जब बड़ा लेवल पे हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तो उस बड़े प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग अपनी दाल गलाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप जो प्रोटेस्ट के जो मेन लोग हैं उनको बदनाम करिए एंड उस प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करिए। जो लोग करते हैं ये, फ़िलहाल हमारे जो किसान लोग हैं वो लोग होने नहीं दे रहे हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, कोशिश की जा रही है, लेकिन हर कोशिश उन लोगों की नाकाम हो रही है टू डिफेम आवर फार्मर्स। सो सल्यूट टू आवर फार्मर्स, एंड आई एम रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि किस लेवल पे, कितने हौसले के साथ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सलाम है इनके उस जज्बे को, सीरियसली। ये चीज़ें आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हर बार झुकते जाएंगे तो मीडिया तो बिक ही चुका है, और अगर शायद ये प्रोटेस्ट ना आया होता, ये इशू ना आया होता, तो इस मुद्दे के ऊपर कि मीडिया जिस हद तक बिका है, इस मुद्दे के ऊपर इतनी बात नहीं हुई होती जितनी आज हो रही है। ऑब्वियसली बातें हो रही थी, लोग गोदी मीडिया टर्म बहुत पहले आ गया था, बट जिस लेवल पे आजकल ड्यू टू द प्रोटेस्ट मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, ये एक्चुअली होनी चाहिए एट दिस बिग लेवल, एंड वी कैन क्लियरली सी कि कितने कितने फार्मर्स, कितने किसान सड़कों पे हैं, लेकिन मीडिया अतरंगी और अजीब चीज़ें कि वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, they just show nonsense, and they don't want to show the real face of the farmers, the real face of the protest. ये सब चीज़ें वो नहीं दिखाते हैं कि वर्दी में कोई आके खालिस्तान के नारे लगा रहा है एंड वो पुलिस मैन ही है। ये सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं कि 26 जैन पे ये वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सो दैट किसानों को फंसाया जा सके। तो दिस इज़ आई एम रियली अशेम्ड ऑफ मीडिया। एक टाइम था
जब मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी एंड ड्यू टू सर्टेन थिंग्स हमारे यू नो लाइफ में बहुत सारे एडवाइसेस मिलते हैं वाइल वी चूज प्लान टू चूज आर करियर एंड देयर वर सर्टेन पीपल इन माय रिलेशन रिलेटिव्स एंड ऑल जिन्होंने कहा कि नहीं यू शुड नॉट गो फॉर दैट बट ठीक है मेरा बहुत मन था बट आज मुझे लगता है कि it's very difficult to survive in this world where there is so much of corruption. There are journalists जो कि बहुत ही ब्रेवरी के साथ यू नो सच का साथ देते हैं पर सच में डेफिनेटली ये मुश्किल बहुत है पर आई ऑल्सो सल्यूट टू दोज जर्नलिस्ट जो इस समय यू नो इतने ब्रेवरी के साथ सच का साथ दे रहे हैं क्योंकि मुझे सच में लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस टाइम पे क्योंकि जब मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया इज़ करप्ट एंड तो अच्छे लोगों का सरवाइव करना इस सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तो आई रियली लव्ड दिस सॉन्ग किसान एंथम एंड प्लीज़ do share this video and do support me by subscribing my channel and hitting the bell icon. I'm going to come up with many more reaction videos on farmers and all of the requested songs which you guys have requested for me to react on. Okay guys, bye bye.